गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज किस प्रकार से परिगणित करते हैं ये सीखा है। और आज की जो क्लास है इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले कैसे होते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द न्यू कंसेप्ट दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। Sometimes it so happens that the borrower and lender agree to fix up a certain unit of time, say yearly, half yearly or quarterly, to settle the previous account. In such cases, the amount after first unit of the time becomes the principal of the second unit. The amount after second unit becomes the principal for the third unit, and so on. So let us move to the formulas which are used to calculate compound interest. So let principal is equal to P, rate is equal to R% per annum, and time is equal to n years. When interest is compounded annually, the formula is amount is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to the power n. Number 2, when interest is compounded half yearly, the formula is slightly different. Amount is equal to P into bracket 1 plus R upon 2 upon 100 raised to the power 2n. And when interest is compounded quarterly, the formula is amount is equal to P into bracket 1 plus R upon 4 upon 100 raised to the power 4n. So, fourth one, when interest is compounded annually but time is in fraction, says 3 to by 5 years. So what we do? We take whole separately and fraction separately. So the formula is amount is equal to P into bracket 1 plus R upon 100 raised to the power 3 multiplied by 1 plus 2 by 5 R upon 100. So that is how we will apply the formula when interest is compounded annually but time is in fraction, say 3 to by 5 years. The next one is when rates are different for different years, say R1 percentage, R2 percentage and R3 percentage. That means for every year the rates are different. Previously we have seen the rates were similar for each year, but now first year rate is different, separate, second year rate is different, and for third year rate is different. So the new formula which is applicable here is amount is equal to P into bracket 1 plus R1 upon 100, that is first rate, multiplied by 1 plus R2 upon 100, that is second rate of interest, multiplied by 1 plus R3 upon 100. So like that this will be calculated. The next one is present worth of rupees X due n years, hence is given by the formula present worth X upon 1 plus R upon 100 raised to the power n. So that is how we apply this formula. Now we will solve some questions based on the formula. अभी जो फार्मूले हमने इस्तेमाल किए उस पर आधारित कुछ गणित जो हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व करेंगे. सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन, आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन रुपीज़ 8,000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम. अब यहाँ हमें कैलकुलेट करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और जो समय है वो 2 साल का है. फार्मूला हमने जैसे पहले सीखा था हम वहाँ पर फार्मूले में रखेंगे. सो रुपीज़ 8,000 मल्टीप्लाइड बाई इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 6 अपॉन 100 रेस्ट टू द पावर 2, क्योंकि 2 साल के लिए हमको कैलकुलेट करना है. सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल सी द आंसर इज रुपीज़ 8,988.8. So this is the total amount which we will get after 2 years. That is why
to find out the CI, we will do 8,988.80 minus 8,000 rupees. So rupees 988.80 will be compound interest, and that was calculated annually. Now next question, after 3 years how much compound interest will be obtained on rupees 10,000 at the interest rate of 7% per annum. यहाँ वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, और जो समय है वो 3 साल का है. फार्मूले में देखेंगे हम लोग 10,000 रुपये गुणित ब्रैकेट में 1 + 7/100 रेज़ टू द पावर 3, क्योंकि 3 साल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं. कैलकुलेशन करेंगे हम उसको, तो हमारा आंसर जो आ रहा है 12,250.49. तो इतनी अमाउंट हमको 3 साल के बाद मिलेगी. लेकिन यहाँ हमको कैलकुलेट करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है. तो 3 साल के बाद मिलने वाली रकम 12,250 रुपये .49 माइनस जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000 रुपये. तो जो रकम मिली हमको 2,250.49, ये हमारा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर हो गया है. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली. अभी क्वार्टरली जो कंपाउंडेड अगर इंटरेस्ट है तो उसके पर आधारित हम गणित यहाँ पर करेंगे. लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 15,000 at 20% per annum for 9 months कंपाउंडेड क्वार्टरली. देखना हमको ये है कि यहाँ कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली है. तो हम देखेंगे फिर से, प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़ 15,000, टाइम क्या है 9th मंथ है, 9 महीने यहाँ पर दिए हुए हैं, मतलब 3 क्वार्टर हैं, है ना. तो एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है, तो पर क्वार्टर जो वो हो जाएगा 5%. तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो 5% पर क्वार्टर के रेट ऑफ इंटरेस्ट से करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है. तो फार्मूला देखेंगे आप, अमाउंट इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाइड बाई इंटू ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाई 5/100. 5 यहाँ पर इसीलिए है कि 5% क्वार्टरली इंटरेस्ट है. और कितने क्वार्टर्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, 3 के लिए, तो रेज़ टू द पावर 3 हो गया. कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को जो अमाउंट मिलेगी दैट विल बी 17,364 रुपीज़ और 30 पैसा. तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो घटा देंगे, तो हमारे पास जो रकम बची 2,364.30, ये हमारा आंसर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए. अगला गणित देखते हैं, फाइंड द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 20,000 at 12% per annum for 6 months कंपाउंडेड क्वार्टरली. प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 रुपये है, टाइम 6 मंथ है, मीन्स 2 क्वार्टर्स के लिए हो गया. तो पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12 है, इसीलिए पर क्वार्टर का हम निकाल लेंगे. तो पर क्वार्टर का 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया है. कैलकुलेशन समय कितना है, 2 क्वार्टर का है. फार्मूले में रखेंगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाई इंटू ब्रैकेट 1 × 3/100 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 क्वार्टर्स के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. द आंसर कम्स टू 21,218 रुपीज़. सो वी विल कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट बाई रिड्यूसिंग 21,218 minus 20,000. So answer is 1,218 rupees. That will be compound interest. So this will be our answer. Now let us move to the another concept which is related to the unit of mathematical reasoning. That term is known as discounting. Discounting मतलब जब आपको जो रेट है, मार्केट रेट है, उसमें जो कंसेशन दिया जाता है वो डिस्काउंटिंग कहलाता है. कि कितना डिस्काउंट दिया है. दुकानों पर लिखा रहता है कि 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, कभी कभी 25% डिस्काउंट, कभी कभी 50% डिस्काउंट. तो ये डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक फॉलोइंग टर्म्स वेरी क्लियर. हमें सबसे पहले समझना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है. द कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड
इट्स कॉस्ट प्राइस, है ना, इट इज़ एब्रिवेटेड एज CP। तो जिस कीमत पर हम किसी इक्विपमेंट को, आइटम को या आर्टिकल को ख़रीदते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। अब ये कॉस्ट प्राइस थोड़ी अलग अलग भी हो सकती है। जो मैन्युफैक्चरर है वो जितने में मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई आइटम वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से ख़रीदेगा तो वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। रिटेलर होलसेलर से जो ख़रीदेगा वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। तो ये किस स्थान पर किससे ख़रीदा गया उसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस जो है वो बदलती रहती है। जब होलसेलर रिटेलर को जो बेचेगा वो उसकी होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी, है ना। तो सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, एब्रिवेटेड एज SP। लेकिन यहाँ जो हमको समझना है वो कंसेप्ट है मार्केट प्राइस। एक कॉस्ट प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी, लेकिन एक मार्केट प्राइस होगी। मतलब फैक्ट्री से माल होलसेलर के पास गया, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास आया, तो रिटेलर ने जिस रेट पे ख़रीदा वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, लेकिन उसको ऐसी प्राइस निश्चित करना है जिससे कि वो मार्केट में बेच सके। तो वो जो आइटम के ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस लगाएगा वो उसकी मार्केट प्राइस होगी। सो द प्राइस विच इज़ प्रिंटेड ऑन द आइटम फॉर बायर विच एडिशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब ये है कि जो खरीदार होगा, जो ग्राहक होगा, उसको उस दुकानदार को जिस कीमत पर बेचना है वो उसकी मार्केट प्राइस होगी। तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है उसके अंदर वो प्रॉफिट मार्क जो है एडिशन कर देते हैं और उस मार्केट की प्राइस उसके ऊपर लिख देते हैं। सपोज़ उसने 10 रुपये में पेन खरीदा तो हो सकता है वो मार्केट प्राइस 15 रुपये लिखे, तो मार्केट प्राइस 15 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹10, द शॉपकीपर विल प्रिंट ₹12 एज मार्केट प्राइस। तो ख़रीदा उसने 10 रुपये में, लेकिन बेचना उसको 12 रुपये पे है, और जो मार्केट प्राइस है प्रिंटेड लेवल उसने 12 रुपये का लगाया है। लेकिन इस 12 रुपये पर भी उसको, क्योंकि ग्राहकों को लुभाना है, इसलिए डिस्काउंटिंग लिखना है कि हम उनको कंसेशन देंगे। तो डिस्काउंटिंग दिस इज़ यूजुअली गिवन ऑन मार्केट प्राइस। जो डिस्काउंट है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग विथ एन एग्जांपल। द प्राइस ऑफ ए पेन वॉज 10% above the cost price. It was sold at discount of 5% on the market price. Find the profit percent. So solution, let us say cost price is ₹100, market price is ₹110 because 10% cost was above the cost price. So now discount जो उसको दिया है वो 5% का दिया है। So on ₹100 5% discount. So on ₹110 it will be 5.5. So 110 जो है वो उसकी मार्केट प्राइस थी, उसमें 5.5 उसको कंसेशन दे दिया, तो प्राइस जो बची वो बची 104.5. So after discount 5% he will sell for ₹104.5, मतलब 104.5 रुपये में उसको बेचा। तो 104.5 माइनस 100, तो 4 रुपये 50 पैसे जो है वो उसको प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। क्योंकि ये प्रॉफिट 100 रुपये पर है इसीलिए इसको हम 4.5% प्रॉफिट कहेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सिंपल डिस्काउंटिंग। इस तरीके से हम फिर से मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो भी डिस्काउंटिंग होती है वो मार्केट प्राइस पर होती है, और मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, क्योंकि रिटेलर को भी अपने खर्चे निकालने होते हैं और प्रॉफिट भी लेना होता है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो मार्केट प्राइस लिखते हैं विद प्रॉफिट उसके ऊपर ही कंसेशन आपको देते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग आल्सो एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आल्सो। आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका परिगणन करेंगे, ये सीखा है। आपने तीनों प्रकार सीख लिए होंगे। क्वार्टरली उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ईयरली कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि ये सारे वीडियो आपको आने वाले नए वीडियो आपको प्राप्त हो सकें।